Great morning, students. Today we are going to discuss about prokaryotic cell. To discuss about the difference between the eukaryotic cell and prokaryotic cell. Prokaryotic cell doesn't contain the true nucleus, but eukaryotic cell has a true nucleus with the chromatin fibers and the chromosomes. But as you know, all the cell organelles are having membranes in case of eukaryotic cell, but in prokaryotic cell, all cell organelles doesn't contain the true membranes around them. So this is the main difference in between them. And other difference, they have their own DNA and RNA, because you know very well eukaryotic cells have a true nucleus, in that there is a true RNA and DNA that controls the genetic materials over the cell. So this is all about the genetic materials contains out there. Now prokaryotic cells, when we take about, they don't have the cell organelle. ठीक है, उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती, सो दे डोंट कंटेन देयर. मोर eukaryotic cells have the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, which are used for the synthesis of protein and lipids. But in case of this, in case of the prokaryotic cell, that doesn't contains the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So in this chapter we will learn about the cell organelles. So let's start the chapter and read it carefully. When the osmosis takes place, जब भी osmosis होती है आपकी, तब आपकी क्या होती है, you can say cell आपकी 3 टाइप की चेंजेस में आती है. इधर सेल विल स्वेल अप, या तो सेल आपकी स्वेल अप करती है, या फिर यू कैन से इट विल लॉस द वाटर कंटेंट और इट विल श्रिंक. And third change, it doesn't change any shape and size. So in this one we will take, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of the water across the cell membrane. यदि आउटसाइड वाला मीडियम में जितने कॉन्सेंट्रेशन वाटर की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी सेल के अंदर भी है, तो आपका नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. इस टाइप के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आउटसाइड द मटेरियल या इन्वायरमेंट एंड इनसाइड द सेल बोथ आर कांस्टेंट टुगेदर. So this is called isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both direction. आपको पता है cell membrane help to cross the materials with the selective particles of it. When it is doing selection of the permeability, then water can cross each other in the different directions it can move, and it can raise the concentration of the water from the inside to outside and outside to inside. This is a special type of mechanism that is performed by the osmosis. So in this topic you have learned about the osmosis के बारे में हमने लर्न किया है. So we will talk about the next topic of it. So the net movement would be ज़ीरो. उस केस में जो नेट मोमेंट है वो आपका ज़ीरो रहेगा और सेल विल स्टे द सेम साइज. सेल का सेम साइज रहता है. इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यदि मीडियम की कंसनट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है, तो मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सनट्रेटेड. ठीक है, इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है. सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस. इससे क्या है, सेल का जितना भी वाटर है वो आपका ऑस्मोसिस से डिहाइड्रेट हो जाएगा. इट वुड बी रिमूव्ड आउट. सच ए सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इस सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, अब आपका क्या है, वाटर दोनों डायरेक्शन में सेल को क्रॉस कर जाता है. सो दिस इज हैपन बेसिकली इन द ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली. अगेन द वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शंस में वाटर क्रॉस कर जाता है. बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल. लेकिन इस टाइम जो आपका बहुत ज़्यादा वाटर बाहर आ जाता है. एंड देन द एंटर, जितना एंटर होता है उससे कहीं ज़्यादा वाटर आपका बाहर आ जाता है.
Therefore the cell will shrink. इसीलिए सेल आपकी श्रिंक हो जाएगी. Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. डिफ्यूज़न है आपका एक ऐसा केस होता है जिसमें सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. मतलब मेम्ब्रेन आपकी क्या करती है, इट हैज़ ए सिलेक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस. सिलेक्शन होता है सब्सटेंसेस का जिसमें आपका क्या है, अदर मटेरियल कैन नॉट एंटर थ्रू इट. नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी रीड करेंगे अबाउट द शो दम ऑस्मोसिस. You can see here, this is the osmosis of the egg. Osmosis in case of egg we will study. This is the activity 5.3. In this we will study the osmosis in egg. Egg में osmosis कैसे होती है? Remove the cell of the egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. The cell is mostly calcium carbonate. Cell आपकी calcium carbonate की बनी हुई है. A thin outer skin now enclose the egg. Put the egg in the pure water and observe after 5 minutes. What do you observe? मीन्स यदि हम सेल को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हमें इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्लेस करना पड़ेगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और इसकी स्किन को डिज़ोल्व कर देगा. दैट्स वाई अब आप एग के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या है, पॉसिबिलिटी होती है स्टोरेज ऑफ दी और एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स टुगेदर. So this is placed here. This is a type of osmosis is given here. In this you can see कि the egg swell up because water passes into the by the osmosis. अब इसमें क्या है, एग आपका स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा, बिकॉज वाटर आपका कहाँ चला गया है, अंदर चला गया है ऑस्मोसिस से. प्लेस ए सिमिलर डी-सेल्ड एग इन ए कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स. अब आपने क्या करना है, ये तो डाइल्यूट में रखा था, अब आपने क्या करना है, कॉन्सनट्रेटेड मतलब कि जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उस सोल्यूशन में आपने रखना है. देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व देयर, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स. द एग श्रिंक हो जाता है. वाई वाटर पासिज आउट ऑफ द एग सोल्यूशन इनटू द साल्ट सोल्यूशन बिकॉज द साल्ट सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड. साल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इसीलिए जितना एग का वाटर होता है वो भी आपका बाहर आ जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म हियर. सो दिस टेल द, इसको हम बोलते हैं एक्समोसिस. जब आपका पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है और एग आपका क्या है, श्रिंक हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्समोसिस. और जिसमें आपका पूरा कंप्लीट मटेरियल अंदर चला जाता है, वाटर अंदर चला जाता है और एग आपकी स्वेलअप हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एंडमोसिस. तो दो टाइप की ऑस्मोसिस होती है, 2 टाइप्स की ऑस्मोसिस होती है, एंडमोसिस एंड एक्समोसिस. एंडमोसिस में अंदर आपका फ्लो होता है और एक्समोसिस में आपका आउटसाइड फ्लो होता है. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस. एंड व्हाट आर द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन that I tell you in this chapter. So next of the we will read in the next lecture. Thank you and have a nice day.